Hello, Manju. Can you hear me? Hi, Anu. Thank you for joining. Can you hear me? अगर आप मुझे एक बार बता देंगे if you can hear me clearly. Okay. Thank you. Thank you. I think should we start? Okay. Thank you. Thank you for confirming that I'm audible. Right. So जैसे WhatsApp में joke आता है that this is the question of the year that am I audible? So that is right. So, okay, good evening, everyone, and welcome to this live on mindful parenting. So, pehle I will just like to give my introduction. I am Dr. Mona Gujral. I am a doctor by qualification. I have done my diploma in child psychology. I am a certified parenting coach and a certified mindfulness expert, and I'm also into spiritual healing. And I have written this book, Raising a Mindful Parent. This is my book, Raising a Mindful Parent, which is available on Amazon. It was released earlier this year and it is a bestseller on Amazon now. So, many people ask me that आपने अपनी book का नाम Raising a Mindful Parent क्यों रखा है? Because in this time, everybody is सब लोग सबका यही होता है कि हम बच्चों को कैसे बड़ा करें. There should be some way that we should raise our children and not and the book name of the book on the contrary is Raising a Mindful Parent. So why do we have to raise a mindful parent and why not raise our children in that way? So, let me start with that. So, what happens is there is a study which is going on. Very clear studies are there from the Harvard University, which state that जितनी भी बच्चों की development होती है, जितने भी उनके beliefs बनते हैं, उनका सारा the foundation जो एक life के लिए बनती है, that happens between 0 to 5 or 0 to 7 years of age. सो उस 0 to 7 और 5 ईयर ऑफ एज में सबसे ज्यादा बच्चों का कांटेक्ट होता है उनके पेरेंट्स के साथ. एंड टू सम एक्सटेंट आजकल बच्चे 4 साल की एज में स्कूल जाने शुरू करती हैं तो टीचर्स भी आती हैं बट दैट इज टू सम एक्सटेंट. मोस्टली जो बच्चों का कांटेक्ट होता है दैट इज विद पेरेंट्स. सो इफ द पेरेंट्स डू नॉट रेज द चिल्ड्रन इन अ माइंडफुल वे, सो जितना भी वो बच्चों की फाउंडेशन बन रही है वो फाउंडेशन वीक बनेगी. बिकॉज जितने भी मोस्टली बिलीफ्स हैं आपके हर बिलीफ आपका अपने पेरेंट्स की तरफ से आता है, whether you like it or you don't like it, but this is what is a fact and this is how our sub psychology and our subconscious mind works. जितने हम द वे वी सी आवर पेरेंट्स इंटरैक्टिंग, कि अगर हमारे पेरेंट्स किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं तो वी विल एब्जॉर्ब दैट. अगर हमारे पेरेंट्स हर बात में सच बोल रहे हैं देन दे आर फॉलोइंग द रूल्स, दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग, सो वी विल हैव दैट इंटेग्रिटी इन आवरसेल्व्स आल्सो. सो बच्चे भी वैसे ही बड़े होंगे. सो सेम वे द वे द पेरेंट्स टैकल एनी प्रॉब्लम. जब भी लाइफ हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो जैसे बच्चे प्रॉब्लम पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स टैकल करते हैं, the children see that and the children absorb that and that goes in their subconscious mind and it stays there. And जब वो बड़े होंगे when they face a certain situation, similarly the way they will react and the way they will come approach a problem is same way the way their parents were doing it. So that is why also one more reason that being a mindful parent is very important. The way you want your children to be that first. If you want your children to be to have a very strong character, so you have to show them that strength in your character first. एंड द सेकेंड रीजन इज बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कभी कभी बच्चे बहुत छोटे हैं
टू फ्रॉम 0 to 7 years ऑफ एज, हमें लगता है बच्चे बहुत छोटे हैं, कभी इन केस हमने उनको कभी कुछ बोल भी दिया तो बच्चे भूल जाएंगे, वट एवर हैपन्स द चिल्ड्रन विल फॉरगेट इट, मगर बच्चे नहीं भूलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप ऑफिस से आए हैं एंड यू आर वेरी टायर्ड, ऑफिस का भी आपने काम किया है, अब घर पे भी आके काम करना है, यू हैव सो मेनी अदर, आपको कोई डेडलाइन भी मीट करनी है, एंड जैसे आप घर पे स्टेप इन करते हो, बच्चा आता है भागा भागा कि मम्मा मम्मा आई हैव टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैम ने हमें इस क्लास में कुछ दिखाया है, एंड यू आर इन सम माइंड फ्रेम एंड यू सेड कि बाद में आना, अभी मेरे पास तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। So, the child, it just goes and hits the child that my parent doesn't have time for me. So, बच्चे को जाके चुप जाता है, और यही अगर ये जो चीज है हफ्ते में 4-5 बार होती है, it happens frequently, then it goes and cements in the brain, the subconscious mind of the child, that my parents do not have time for me. फिर बच्चा जाके अपना ढूंढता है, अपने फ्रेंड्स ढूंढता है या कोई और सर्कल ढूंढता है जिनके पास उसके लिए टाइम हो, and that is where when the parenting fails, and क्योंकि we are not in control that what would be the company of the child which the child is going and searching. So this is where the parenting fails. So this is one very small example जो मैंने आपको दिया कि why we have to be very mindfully aware कि हम बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, and we do have to keep some time for the children. आप जितने भी बिजी हो, आप एटलीस्ट आपका 1 घंटा बच्चों के साथ, दैट क्वालिटी टाइम दैट वी टॉक अबाउट, जो क्वालिटी टाइम होता है, दैट हैज टू बी देयर विद द चिल्ड्रन। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, हाय पूजा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हाय शिल्पी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हेलो अक्षता, good to see you, thank you for joining. So please, if you all have any questions, please you can, this is an interactive session, and I would really like कि आपके जो भी if there is something that you're going through, something that you want to ask me, I will try my best to answer your questions whatever you can. So let us make it a very interactive session. So before we start, let me ask you something. Let me ask you something कि आप what is the difference between communication and hearing? There are many parents here, so let me ask, what is the difference according to you? क्या difference है communication और hearing में? This is also very जो मैं आगे communication की बात करने वाली हूँ, that is also very important pillar of mindful parenting. हम कैसे mindful parenting करें? It's a very important pillar. I will talk about it. कैसे करना है? So if someone can give me a reply कि communication और hearing में आपको क्या लगता है? What is the difference? And do you communicate with your children or you hear your children? Thank you for tagging people. Akshita, Pooja, thank you for tagging people. Okay, so we have a question. Okay, Pooja is asking that my kid is 7 year old, didn't concentrate in his studies. I tell story and all to connect with the study, but he does not concentrate. Okay, so let me पहले आपका जब तक हम communication और hearing, let other people also join. By the time मैं आपका question answer कर देती हूँ कि बच्चों के साथ आप उनको इवन बड़ों के साथ भी ये होता है, या जब आप ये सोचिए जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको जिस काम के लिए बोला जाता था रिपीटेडली बार बार, आप उस काम से भागते थे, यस और नो, राइट पूजा? सो जो भी मतलब बहुत ज्यादा आप जिस भी आप अगर बच्चे को बोलेंगे कि पढ़ ले, दिन में सारा दिन अगर आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि पढ़ ले, बच्चा, यस, तो बच्चा उतना ही वो अपनी पढ़ाई से पीछे भागेगा, राइट? सो द बेस्ट पार्ट इज दैट टेल योर चाइल्ड कि दिन में आई विल टेल यू टू स्टडी ओनली फॉर, अगर बहुत देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, छोटे 7 year old इज अ स्मॉल चाइल्ड, सो जस्ट टेल द चाइल्ड कि यू हैव टू सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को पढ़ना है,
जस्ट टेल द चाइल्ड दैट वे कि हम 15 मिनट सुबह पढ़ेंगे, 15 मिनट शाम को पढ़ेंगे, 15 का आप 20 भी कर सकते हो, कि वी विल जस्ट स्टडी फॉर 15 to 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 15 to 20 मिनट्स इन द इवनिंग। अगर ये करना है, अगर अगर ये नहीं किया, सो देन प्रोबेबली यू कैन नॉट वॉच द टीवी, और अगर कोई वीडियो गेम बच्चा खेल रहा है तो आपको वीडियो गेम नहीं खेलने को मिलेगी। यू हैव टू डू लाइक दैट। बच्चों को स्टोरीज सुना के पढ़ाई में आप उसको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मगर बच्चे को बिठाना उस समय बहुत मुश्किल होगा। स्टोरीज जो आपने लिखा है बच्चे को सुनाते हैं, तो उससे आप कोई भी चीज आसानी से उसको समझा सकते हैं, बच्चे इजीली समझ जाते हैं स्टोरीज के थ्रू। बट बच्चे को बिठाना और कॉन्सेंट्रेट कराना पढ़ाने में इतनी देर के लिए वो मुश्किल हो जाएगा। So उसके लिए सबसे बेस्ट है that you tell your child that we will study only for 15-20 minutes in the morning. I will not tell you कि 1 घंटा पढ़ लो। तो अगर 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को हो गया, तो इट इज 40 मिनट्स फॉर द चिल्ड्रन, एंड वो धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते रहेंगे जैसे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता रहता है। सो आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहिए टिल यू थिंक कि बच्चा रोज दिन में एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पढ़ रहा है, तो आप वो धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाइए। एंड सो जस्ट टेल देम कि सिर्फ 15 मिनट, बच्चों को भी लगता है कि 15 मिनट तो बहुत कम टाइम है, सो दे कैन डेफिनेटली सिट फॉर 15 मिनट्स। हाय तजिंदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। So they can definitely sit for those 15 minutes, at one time. And this is probably, does that answer your question, Pooja? Right. So हम लोग थे, I was asking you what is the difference between communication and hearing. I think मुझे मंजू ने आंसर दिया था that communication is 2 ways and hearing is 1 way. So communication एक mindful parenting का बहुत ही important pillar है. So जितना हम ज्यादा अपने बच्चे के साथ communicate करेंगे, जितना हम parent और child का communication होगा, उतना strong आपका parent और child का bond होगा. Yes, yes, thank you, Pooja. So उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका, जितना स्ट्रॉन्ग आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड होगा। सो कम्युनिकेशन में क्या होता है, दैट कम्युनिकेशन व्हेन वी आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन विद समवन, that means that we are with our mind, body and soul, we are hearing or listening to the person हमारे साथ बैठ के। तो अगर आपको बच्चे से कोई इफेक्टिव बात करनी है, आप बच्चे को अपने सामने बिठाइए, you have to sit face to face, and have an eye to eye contact, and better to hold the hands, or just, and then with a very calm and soothing voice talk to your child. तो तब आप अपने बच्चे से बात करिए। और अगर बच्चा आपको स्कूल से आया, कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता है, देन ऑल्सो आप ऐसे बच्चे को आमने सामने बिठाकर बच्चे के साथ बैठकर बात करेंगे, वो उसका जो इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा होगा। And when you're sitting like that, you can hear, you can see the child, you can hear what the child is saying, you can look at the child, and आपको पता चलेगा कि अगर बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अगर उसकी आंखें नीचे जा रही हैं, आपके साथ आंख से आंख मिला के बच्चा बात नहीं कर रहा है, so it means there is something wrong. The child is probably not telling you something 100%, कुछ चीज वो छुपा रहा है। अगर बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, आप अगर सामने बैठ के देख रहे हैं, आपको बच्चे का बॉडी लैंग्वेज दिखेगा कि उसके कंधे एकदम झुके हुए हैं, ही इज अपसेट, सिर, मतलब यू कैन सी व्हेन योर चाइल्ड इज लाइक फीलिंग वेरी उदास है, या कुछ किस ढंग से बच्चा बात कर रहा है। हाय आरती, वेलकम। सो आपको पता चलेगा कि बच्चा कैसे बात कर रहा है। एंड बिकॉज इन एनी कम्युनिकेशन देर इज 38% is the body language, 55% is the tonality of the voice, और सिर्फ 7% होता है जो बच्चा वर्ड्स होते हैं। सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड में नहीं, इवन इन द ऑफिसेज, इवन इन एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर भी होता है, ओनली 7% ऑफ वेटेज इज फॉर द वर्ड्स। बाकी सारा जो है, दैट 93% इज द टोनालिटी ऑफ द वॉइस, कैसी आवाज आ रही है, धीरे से आ रही है, बहुत तेज आ रही है, and the body language, the eye contact, everything else takes that place. So अगर आप बच्चे के साथ आराम से सामने के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, so आपको सब पता, 100% you will be involved in the child, and the child will also be happy that yes, my parents are listening to what I'm saying, जो मैं कह रहा हूँ उसकी importance हो रही है, and my parents are actually interested in hearing me talk. So this is what good communication is. And when the communication, आप ऐसा strong communication बताएंगे, धीरे धीरे
the things happen that your child starts telling you everything. ये मोस्टली टीनेजर्स के लिए बहुत होता है. आई हैव सीन अ लॉट दैट पेरेंट्स कम एंड टेल मी कि हमारे टीनेजर बच्चे हैं वो हमारे साथ बात ही नहीं करते हैं. वो हूँ या हाँ से ज्यादा बच्चे कुछ बात नहीं करते, कुछ जवाब नहीं देते हैं. सो दिस इज वॉट दैट कम्युनिकेशन हैज नॉट बीन बिल्ड ऑन. तो हमें धीरे धीरे, इट इज नेवर टू लेट. अभी चाहे आपका बच्चा जिस भी एज में है, इट इज नेवर टू लेट कि आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें. टाइम जरूर लगेगा. अगर आप आज भी शुरू करते हैं टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और वो रूटीन में आने में टाइम जरूर लगेगा आपको, मगर धीरे धीरे अगर यू परसिस्टेंटली ट्राई, द चाइल्ड विल सी योर जेन्युइन एफर्ट, और बच्चे जरूर आपके साथ दैट यू विल हैव दैट कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड. और जहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है वहां पर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है. और हियरिंग जो हम कह रहे थे, हियरिंग में क्या है कि हियरिंग में आपने बच्चे को बोला हाँ बोलो क्या बोलना है तुमको, और आप साथ में अपना कुछ मैसेज कर रहे हो. आप अपना प्रोबेबली यू आर चेकिंग योर ईमेल, यू आर सेंडिंग सम ईमेल, आप अपना कोई और घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं. सो बच्चा सिर्फ बोलता जा रहा है, आपको सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है, और आपको पूरा उसका बॉडी लैंग्वेज, पूरा उसका व्हाट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू से. यू आर नॉट, वो जो कही अनकही बातें होती है, जो अनकही बातें होती है वो आपको नहीं समझ आएंगी जब तक आप बच्चे के सामने बैठकर बात नहीं करेंगे. So that is the difference between communication and hearing. And communication, as I told you, is one of the very strongest pillars of parenting. I have a question here. It's really work. My kid is so talkative. I hear all his imaginary talks and school time talk. I completely concentrate on this talk. So he shares all his good and bad things, and he do and can't scroll him any of his bad habits. I smoothly talk to him. Yes, yes, this is what I have been talking about. Pooja ने बहुत अच्छा example दिया that she talks. The child is very talkative. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि बच्चा आपको बहुत बात करता है तो बहुत बार पेरेंट्स की आदत होती है कि यार कभी चुप भी हो जाया करो. मेनी अ टाइम्स पेरेंट्स से दैट. मेरी डॉटर जब छोटी थी तब मुझे इतना पता नहीं था. सो हाय हर्षिता, वेलकम, वेलकम टू द लाइव. सो मुझे इतना पता नहीं था, एंड आई used to tell her कि कभी चुप भी हो जाया कर. But then now that I know, so I know that she should talk. जितना ज्यादा बच्चे बात करेंगे उतना ज्यादा आपको पता रहेगा. और जो बच्चा एज अ टॉकेटिव चाइल्ड है, वो बच्चा अगर बहुत बात करता है, सो यू आर वेरी श्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग इनसाइड, राइट. सो जैसे आपने लिखा है कि आपको उसकी सारी गुड और बैड बातें, हर बात का पता है. सो दैट इज द थिंग विच इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी. एंड पेरेंट चिल्ड्रन में, अभी आपका बच्चा छोटा है, लेट द चाइल्ड continue the same way what you are doing with your child. Continue it so that when the child is at a certain age, the child does not is still very telling you everything. Hi Rashmi, welcome to the live. Any other question? Okay. हाँ एग्जैक्टली, जो ना आपने लिखा है पूजा, राइट, कि आपको भी अपने स्कूल टाइम की बातें बताते हो. सो दैट इज सच अ नाइस वे, दैट इज सच अ नाइस वे टू हैव दैट बॉन्डिंग विद द चिल्ड्रन. आप अपना शेयर कर रहे हैं, बच्चा अपना शेयर कर रहा है, देन द चाइल्ड विल बी इनकरेज्ड टू शेयर मोर. सो फॉर टीनेजर्स, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि टीनेजर्स बच्चे बात नहीं करते, उनसे कैसे बात करवाएं. सो द थिंग इज, और या फिर बच्चे हमारे वैसे ही बहुत कम बात करते हैं. सो द थिंग इज कि आप बच्चों को बोलिए कि मेरे साथ अगर यू वांट योर चाइल्ड टू टॉक. टीनेजर्स के मैं ज्यादा एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज आई वर्क विद टीनेजर्स अ लॉट एंड आई गेट लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर टीनेजर्स कि बच्चे बात नहीं करते, उनसे कैसे कोई काम भी करवाना है, उनसे कैसे करवाएंगे. सो उनके लिए, हाय सोनम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव. सो उनके लिए यही है कि जितना ज्यादा आप उनको अपनी तरफ से स्टोरी सुनाइए कि अगर बच्चा नहीं आपसे बात कर रहा है, सो कि दिस इज व्हाट आई नीड हेल्प, कि मुझे मेरा ये काम कर दो, आई एम स्टक एट दिस थिंग, मुझे ये चीज कोई समझ नहीं आ रही है. talk to your children in that way. There's nothing wrong in asking your child कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बता दो. चाहे आपको आ भी रहा हो, but just to make your child talk, just to break that ice with your child, please talk to your teenagers like that. हैं वो आपके बच्चे, but they are because of the growing age and the sudden changes, so many changes, which chemical changes which are happening in their body, they take a little step back.
right? But when you tell them that, I need your help for this so and so thing, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, can you do that for me? They will definitely pitch in and help. So that is a very good way कि हम बच्चों के साथ, especially with teenagers, to take it forward and take the communication forward in that way, right? So anything, any other question any would like to ask me? Okay, my brother is in teenage time, and I am in my in-laws house, and he can't tell his any confusion to my mom. He tells me कि दीदी बताओ अब क्या करें. That is a very, yes, parents में होता है कभी कभी, because the, this is why I'm saying कि there is a very important thing to have a very good connection with your children, ताकि बच्चे आपको हर बात बता सके. Luckily for your brother, he has you as a elder sister, तो वो आपसे बात कर सकता है. बट अदरवाइज जिनके पास एल्डर सिबलिंग नहीं है या कोई और नहीं है घर का जिससे वो बात कर सके, देन द चाइल्ड विल गो आउट एंड टॉक. और वो बाहर का जो उनको बच्चों को मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वो आपको नहीं पता है. एंड हाउ मच यू कैन रिलाई ऑन दोस, someone outsider, that you don't know. So it is a very good thing to have a very strong bond with your child at home itself. So communication is a very important part, जैसे हमने बोला, for mindful parenting. The other, we were talking about mindful parenting in this, and the second very important pillar for mindful parenting is, कोई बता सकता है, if anybody could tell me that? एक हमने कहा कि parenting का बहुत important pillar है communication. The second pillar, what do you think, according to what do you think is the should be a pillar of parenting? And let me tell you one more thing, that everybody who has joined this live, I have a special gift for you. If you can just write your email address, give me your email address, I will be sending you a video on emotional trans or handling the emotions of children. मेरा कोर्स है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का चिल्ड्रन बच्चों के साथ, कि हाउ कैन वी, यू नो हाउ कैन वी हैव अ वेरी इमोशनल, हाउ कैन वी हैंडल द इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन इन एन इफेक्टिव वे. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के इमोशंस जो होते हैं अंदर ही दबके रह जाते हैं, and we are not able Harshita has written something. Sometimes I scold my child when I'm busy in mobile. आपका सेशन अटेंड करके लग रहा है कि I'm doing wrong. Uh, when yes हर्षिता, ये I would really tell you कि अगर आप बहुत कुछ important कर रहे हैं मोबाइल पे, if you are something in the mail, something very important in the mail, तो आप प्लीज बच्चे को बोलिए कि give me 5 minutes, मुझे 5 मिनट लगेंगे, मुझे ये काम खत्म करने तो, then I will sit and talk with you, right? बट ये नहीं है कि आप अपना, अगर सर्फिंग भी कर रहे हैं, बच्चा आपको आके कुछ बताना चाह रहा है और उस समय आपने बच्चे को बोल दिया कि नहीं अभी मैं नहीं बात कर सकती. दैट इज लिटिल रॉन्ग. सो अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टेल योर चाइल्ड. बच्चे समझते हैं कि हाँ ठीक है, मम्मा को कुछ काम करना है, इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है, शी विल डू इट, एंड देन गिव 100% अटेंशन टू योर चाइल्ड व्हेन यू आर टॉकिंग. So right, पूजा का मुझे email आ गया है. So I was asking कि अगर if anyone would be interested to, I will be sharing a free video of how to handle emotional outbreaks in children. That can be in toddlers also. That can be in with your teenagers also. जब बच्चे बहुत ही out of handling हो जाते हैं, हम उनको कैसे handle करें. So I have a video for that, and I will be sharing it. Whoever sends me the email, I will be sharing the video with you. And that video is a part of my course on emotional handling. And क्यों ज़रूरी है हमें emotion handle करना हमारे बच्चों से इसी age में, हमें why why is it important that we should tell our children how to handle their emotions, क्या ज़रूरत है करने की. And there is a full course on how to do it also. So there is a full course on that, because बहुत सारी जो हमारी जितनी भी bodily issues हैं, जैसे body, because I'm an energy healer, I can relate very well to that, कि हमारे physical जितने भी problems हैं, they are all because of emotions.
और वो इसलिए हमें आ रही है क्योंकि हमने अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीखा। सो अगर हम अपने बच्चों को इसी छोटी एज से वो इमोशंस हैंडल करना सिखा देंगे, तो आगे जाके जो फिजिकल, एटलीस्ट जो फिजिकल प्रॉब्लम्स इमोशंस की वजह से हैं, उससे बच्चे बच सकेंगे। एंड प्लस उनकी एक जो पर्सनालिटी जो बच्चों की डेवलप होगी, when the children will be able to handle their emotions well, that is a very that will be very good. And the yes, I can see a few emails, so I will take down the emails, and by tomorrow I will be sending all of you जिन्होंने पूछा है for the video of this course, right? So the second pillar that I was talking about in parenting is trust. We have to trust our children. किसी ने लव लिखा था, केयर एंड लव। केयर एंड लव तो वो तो जैसे सांस लेते हैं, हम अपने सांस लेते हैं, दैट केयर एंड लव इज फॉर पेरेंटिंग। तो उसका तो कोई वो है ही, केयर एंड लव हैज टू बी देयर, हैज टू बी देयर। जैसे हमारे जीने के लिए सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड के लिए केयर एंड लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। But the pillar that I was talking was is trust. You have to trust your child. Only when you trust your child will the child, आप अपने बच्चे के साथ ट्रस्ट वर्दीली आप कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, तभी बच्चा भी आपके साथ उसी ट्रस्ट के साथ कोई चीज शेयर करेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप तो अपने बच्चे को कुछ नहीं बता रहे, नहीं नहीं नहीं, ये मत देखो, ये मत करो, ये मेरा है। आप अपने बच्चे के साथ यू आर हाइडिंग थिंग्स, एंड देन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड कि अच्छा मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे, हु आर योर फ्रेंड्स, आप बच्चे के साथ किसके साथ क्या बात कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे हो। So that really goes wrong. So like I said कि mindful parenting why is important, कि जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं, that is the way you have to behave with the child, right? You have to walk the talk. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आपको हर चीज बताए, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताए, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सो आपको भी अपने बच्चे को हर चीज बतानी पड़ेगी। वेन एवर योर चाइल्ड आस्क यू इन एन एज अप्रोप्रिएट वे। ये मैं नहीं कह रही आप बच्चे को सब कुछ बताइए, बट इन एन एज अप्रोप्रिएट वे यू हैव टू टेल योर चाइल्ड what is happening, and what you're doing whenever your child asks you. So trust whenever your child tells you कि okay, कि this is mama, this is what happened, so you have to trust your child कि ठीक है, अगर बच्चे ने ऐसा बोला है, it has to be like that. Never go against the child. बच्चे के पीठ पीछे जाके आप कोई काम नहीं करेंगे। that gives वो पता चल जाता है बच्चों को, and that gives a very wrong impression to the child there. That breaks that that parent child bonding में को trust break हो जाता है। So then that is very right. So Pooja is writing, yes, ma'am, it's really true. Kids all time want reasons why I can't do this. If I tell him it's wrong, yes, the children, बच्चों का यही तो है। सबसे ज्यादा they ask for reason whenever you tell them कि ये मत करो, क्यों, why is the thing which comes, the first thing that comes to you. Why should I not do that? So instead of hiding anything from, instead of hiding, tell the child in an age appropriate way what is happening, why the child should not do that in a very age। अगर कोई चीज आप नहीं बता सकते because of the age, so tell it in a tone down it to the level of the child। जो बच्चा जितना समझ सकता है आप उसको उस लेवल तक लेकर आइए, and then tell the child that this is why I'm telling you not to do this thing। and when you give reasons and logical reasons to the children, they definitely they are going to listen to you। सिर्फ ये कहना कि बिकॉज आई सेड सो, कि मैंने कहा है इसलिए मत करो, दैट इज नॉट इनफ फॉर द चिल्ड्रन। यू हैव टू गिव देम सम लॉजिकल रीजन। एंड एनी अदर क्वेश्चन? So I think बाकी भी whoever is seeing the repeat telecast of this live, so in case you are interested to join the to get that emotional transformation ka video, please send me your email addresses, and we will I will send you the videos। Hi Tajinder, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Do you have a question? And I am available on across I am available on Instagram, I'm available on Facebook,
I'm available on YouTube, on LinkedIn by the name of Dr. Mona Gujral. So you can please, uh, share, follow me on any of the platforms. I keep on giving many tips on parenting. बहुत articles आते हैं, बहुत tips आती हैं, which I keep on giving. So in case you would be interested to please follow me on any of the platforms. I am available by Dr. Mona Gujral by the same name, and my book is available on Amazon by the Raising a Mindful Parent. If anybody would be interested, they can have a look at the book. ये जब हम बच्चे को मम्मा पापा बोल देते हैं कि नहीं करना है, हम मान जाते हैं, बट दिस टाइम किड्स ऑलवेज वांट रीजंस इट ऑल टॉपिक्स. यस, आजकल की जनरेशन बहुत अलग है पूजा. These days हम when we were in a very small age, so हम लोग सोचते थे कि ठीक है, पेरेंट्स ने बोल दिया, so okay, we have to उनकी बात माननी है. But these days the children, they need explanation. These days the children need explanation for every small thing. हम उनको कोई भी चीज ये बोलकर नहीं कर सकते कि मैंने कहा है इसलिए ये करो. बच्चे को दे नीड एक्सप्लेनेशन, और जब तक हम उनको एक्सप्लेनेशन देकर नहीं शांत करेंगे, उनका दिमाग चलता जाएगा. वो फिर अपने दिमाग से सोचेंगे, अच्छा इसलिए बोला है, वो इसका ये रीजन होगा, वो ऐसे होगा, वो उनका दिमाग अपना चलता जाएगा. वो अपनी कहानियां बना लें. इससे बेटर है दैट वी टेल देम व्हाट दिस इज द प्रॉपर वे, यू डू नॉट डू दिस, दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, दिस इज द लॉजिकल वे. सो तजिंदर का आंसर है कि मेरी बेटी ग्रो नहीं कर पा रही है, मिल्क फीडर में लेती है. So Tajinder, I am not a pediatrician, so I will not be able to answer any pediatric related questions. तो वो आप प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन से पूछिए. आप इफ देयर इज अ ग्रोथ रिलेटेड इशू, आप प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन से पूछिए, आप उनसे चेक कराइए. आई एम मोर ऑफ एन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियरल पर्सन, सो आई टेक थिंग्स फ्रॉम दैट एंगल. सो ये इस क्वेश्चन पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूंगी. दैट इज नॉट इन माई फील्ड. एनी अदर क्वेश्चन? I think मुझे आधे घंटे का टाइम था. I had 5 to 5:30 was the timing. Okay, Sonam also has a question कि मेरी बेटी 5 ईयर की है, मिल्क फीडर में लेती है. So as I said, Sonam कि अगर कोई इसका physiological reason है, that I will not be able to answer. I'm not a pediatrician. But yes, I would like to suggest you as a behavioral expert. I would like to tell you कि आप अपने बच्चे को स्लोली, बहुत बच्चे ऐसा होता है कि वो रात को जब सोते समय उनको फीडर के साथ दूध जरूर चाहिए, नहीं तो उनको नींद नहीं आती है. सो आप पहले दिन में उसका दूध बंद करिए. दिन में आप उसको ग्लास में या कप में, बहुत सुंदर सुंदर कप्स लेकर आइए. बच्चे को बहलाने के लिए होता है. अगर उसको बारबी पसंद है, बारबी वाला कप लेकर आओ आप. अगर कोई यूनिकॉर्न पसंद है, यूनिकॉर्न वाला, जो उसको पसंद है. आजकल तो हर तरह तरह के कप मिलते हैं. सो बच्चे को उस तरह से आप बहला फुसला के आप कप्स में पिलाना, कप्स या ग्लासेस, जैसे मर्जी आप पिलाना चाहते हैं. कप्स या ग्लासेस में बहुत सुंदर सुंदर आते हैं. सो बच्चे उससे अट्रैक्ट भी होंगे, एंड दैट वे आप उसको पिलाना शुरू करिए. और रात धीरे धीरे उसके बाद में जाके लास्ट का रात का छोड़िए, क्योंकि कई बच्चों में होता है कि वो दिन में तो कर लेते हैं, बट रात को उनको बॉटल फीडर में ही दूध चाहिए, बिकॉज उनको फिर नींद नहीं आती है. सो पहले आप उसको दिन में शुरू करिए, और गेट सम रियली अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, जो उसको पसंद है, पिंक कलर का कप पसंद है, जैसा पसंद है उस कलर का लेकर आइए. उसमें वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी. फिर वो द चाइल्ड विल लीव द बॉटल, द फीडर. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई सेड. और जब वो बच्चा, पूजा ने कहा है कि जब वो बच्चा 7 से 10 साल के बच्चों के साथ बात करेगा, तो कौन से बच्चे ने कहीं टीवी पे कुछ देख लिया, कहीं पर कुछ देख लिया, वो आपके बच्चे को क्या बता रहा है, आपको नहीं पता है. सो इसलिए बेटर है कि आप अपने बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं, आप अपना बच्चे को खुद सिखाइए, और उसके फ्रेंड्स के ऊपर मत छोड़िए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके अपनी क्यूरोसिटी सेटिस्फाई करे. राइट. सो आई गेस सोनम, ये जो मैंने आपका बॉटल का इशू बताया है, प्रोबेबली दैट विल हेल्प.
क्योंकि अगर आप बच्चे, दिस इज मोर ऑफ बिहेवियर थिंग फॉर अ चाइल्ड। सो और जितना आप उसको, आई थिंक फीडिंग 5 साल का बच्चा है तो उसने खाना शुरू किया है, तो आप उसको खाने करवाइए, सो दैट द चाइल्ड इज नॉट दैट हंग्री कि उसको दूध फीडर से लेना, बार बार लेना पड़े दिन में, राइट? ओके, ओके, राइट। सो आई गेस लेट्स एंड द लाइव। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आप मुझे बताइए, otherwise I think we will end the live, it is already. Thank you, Pooja, thank you so much for joining, thank you Sonam, thank you for joining। और अगर आपको किसी को वो इमोशनल, हाउ टू हैंडल इमोशंस, इमोशनल आउटब्रेक्स इन चिल्ड्रन, बच्चे हो, टॉडलर्स हो या टीनेजर्स हो, इफ यू वांट दैट वीडियो प्लीज लीव योर ईमेल आईडी, आई विल गेट बैक टू यू, और मैं आपको कल तक वो वीडियो भेज देंगे। I think there are no more questions, so we can end the live. Thank you, everyone. Thank you so much. It was a lovely interacting with you and lovely, beautiful audience. And I am there on social media. You can, anytime, if you need any consultation, you can always contact me. Thank you so much. Thank you.